ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہزار ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اور یہ بھی بندے بھی کون سے مومن بندے ہیں, تیرے محبوب کے امتی ہیں. اے پاک پروردگار تیری رحمت تو اپنی رحمت کو حرکت میں لا. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے پاک پروردگار تو ہی ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا. اے پاک پروردگار تو اس ظالم اسرائیل کے ظلم سے فلسطینی غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تو ہی ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی قوم کے لیے سمندر میں راستے دیے. اللہ تعالیٰ فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی فتح اور ان کی پر جو ہے مصیبتوں کے ختم ہونے کے راستے پیدا فرما دے. اے پاک پروردگار تو ہی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بحفاظت جو ہے کنویں سے نکالا. ایک پاک پروردگار اس وقت غزہ ایک کنواں بن چکا ہے. ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا, اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو اس کنویں سے نکال دے. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما دے. اے پاک پروردگار بے شک تیری ہر چیز میں حکمت ہے. ہم جاہل, ہم تیری حکمتوں کو نہیں جان سکتے, لیکن اے پاک پروردگار دنیا جو ہے بظاہر مسلمانوں کے ایمان پر اس پر شک کرتی ہے. میرے مولا اے پاک پروردگار تو مسلمانوں کو جو ہے ایمان, یقین اور مستحکم کی دولت عطا فرما دے. اے پاک پروردگار اس جنگ کو بند فرما دے. اے مولا ظالم اسرائیل کو جو ہے نیست و نابود فرما دے. اے مولا ظالم اسرائیل پر جو ہے آسمان سے اللہ ابابیل کا کوئی لشکر بھیج کر اس کو ہمیشہ کے لیے تہی تیغ فرما دے. اے پاک پروردگار فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما دے. اے مولا پاک پروردگار تو بڑا کریم ہے. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me. ویوز شیخ گونڈوی نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے. ابھی ہمیں رابوڑی تھانہ میں, اور رابوڑی میں آج ایک احتجاج پروٹیسٹ جو مسلم کمیونٹی کی طرف سے دیکھنے کے لیے ملا ہے. اور ہمارے ساتھ کافی مسلم کمیونٹی کے جو سنی, دیوبند اور ہر طرح کے علماء یہاں پہ دیکھنے کے لیے ملے, اور ان سے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے. جو رابوڑی میں آج یہ پروٹیسٹ نکالا گیا تھا اور فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے لیے آج دعا کا اہتمام کیا گیا تھا, انتظام کیا گیا تھا. تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں, ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ آج جو پروگرام رکھا گیا تھا اس کا کیا خاص مقصد تھا اس پروگرام کے لیے. تو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل گونڈوی نیوز میں, اور کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دراصل یہ جو پروگرام ہے یہ آج دنیا جانتی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور بمباری ہو رہی ہے. تو یہ ایک طرح کا ان کے لیے دعا بھی ہے, اور دوسرا احتجاج بھی ہے کہ ہم اپنی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنا رول ادا کرے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ جنگ بند کرے, نہیں تو اس کے انجام خطرناک ہو سکتے ہیں. جتنا جنگ آگے بڑھے گی اتنا ہی اسرائیل اور اس کے ساتھی جو ہے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. لہٰذا اس کو روکا جائے تاکہ دنیا میں امن و شانتی پیدا ہو. ہم نے یہ اس لیے جو احتجاج اور یہ دعا کا رکھا گیا ہے. تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں جو جمعہ مسجد کے, ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کا اس پر کیا کہنا ہے. جی, اس پروگرام کا مقصد وہی ہے جو ابھی حضرت نے بیان کیا, وہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو اسرائیل کی طرف سے تسلسل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکا جائے. ہم نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کا اہتمام کیا اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا, اور اپنی حکومت سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں پورا طریقے سے کہ ہماری حکومت دباؤ ڈالے
इसराइल के ऊपर कि वो जुल्म करना बंद करें। जिस तरह की अभी सरकार है उससे क्या मांग करेंगे आप? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, उनसे आपकी क्या गुजारिश रहेगी, क्या अपील रहेगी? हमारी अपील उनसे ये है कि आप इतने बड़े मुल्क के वो एक हुक्मरान हैं, तो ये चाहें तो ये काम कर सकते हैं। बस ये दबाव डालें वहाँ के हुक्मरान से कि भाई ये जंग ख़त्म हो और फ़लस्तीन के ऊपर ये जुल्म का सिलसिला ख़त्म हो। थाना MIM के स्पोक पर्सन अमजद बरकाती साहब, हम उनसे भी जानना चाहेंगे जो आज इस प्रोग्राम में इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो इस प्रोग्राम के मुतालिक इनका क्या कहना है? हमारा कहना सिर्फ यही है कि अभी हमारा राबोडी तौर पे ये शुरू हुआ, अगर विध विराम नहीं लगता है तो हम ऐसे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले टाइम में अगर और जंग आगे बढ़ती है और मजलूमों का कत्ल होता है तो इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। प्लीज़ कम से कम हम अपने देश में रह के जो इसराइल की जो एम्बेसी है दिल्ली में, इंशाल्लाह इससे बड़ा धरना प्रदर्शन हम इंशाल्लाह वहाँ भी करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो जंतर मंतर पे भी ये प्रोटेस्ट आपको देखने मिलेगा। हम इस माध्यम से अभी आए हैं कि भैया कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते, नहीं कुछ कर सकते, लेकिन दुआ कर सकते, तो दुआ के साथ साथ कुछ कोशिश भी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम वो कोशिश भी करेंगे, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। तो हमारी ये कोशिश अभी प्रोटेस्ट की है गली कुछ और शहरों से लेकर, इंशाल्लाह ताला भी अल्लाह ने चाहा तो और प्रोटेस्ट इंशाल्लाह आगे चलेंगे भी। लेकिन अगर ये विध विराम जल्दी नहीं रुका तो इंशाल्लाह ताला हम जाके इसराइल एम्बेसी के सामने इंशाल्लाह अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं राबोडी की मशहूर हस्ती डॉक्टर असगर मुकादम साहब, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो प्रोग्राम था इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये जो प्रोग्राम आज रखा गया था, हमारा मकसद था इंसानियत के ताल्लुक़ से। हम इंसानियत के चाहने वाले हैं और हिंदुस्तान का हर मुसलमान इंसानियत का चाहने वाला है। आज फ़लस्तीन के अंदर जिस तरीके से इंसानियत को कत्ल किया जा रहा है, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ में ये प्रोग्राम हमने रखा था। हम हमारी हुकूमत हिंद से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी दोहरी पॉलिसी को जो है वो डिसक्वालीफाई करे, उसको कैंसिल करे। एक तरफ तो आप जो है वो फ़िलिस्तीन के लिए मदद भेज रहे हैं और दूसरी तरफ जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इजराइल के ख़िलाफ़ या फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ जो बमबारी की जा रही है उसके ख़िलाफ़ आप वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड जो अपनाया जा रहा है, हम हमारे हुकूमत हिंद से गुजारिश करेंगे वो इसको कैंसिल करे। और जो हमारा मैनिफेस्टो 1947 से ले करके अब तक के रहा है कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन फ़िलिस्तीनियों की थी, फ़िलिस्तीनियों की है और फ़िलिस्तीनियों की रहेगी, यही हमारा मकसद है और यही हमारा मंशा है। तो हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ आरिफ साहब, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड इनका क्या कहना है? आज जो हमारा ये दुआइया प्रोग्राम हुआ जनाब मुफ्ती शरीफ साहब साबरी की क़यादत में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और आइंदा जिस तरह ये आज इसराइल और फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से यहाँ पर कारी साहब ने जो ये कदम उठाया, दुआइया प्रोग्राम हुआ, एहतजाज हुआ, आइंदा भी तमाम राबोडी के जो है मुत्तहिद होकर मुसलमान भाई और अइम्मा इकराम तमाम मस्जिद मदरसे के लोग मैदान में आना चाहिए। इसलिए ये अच्छा रहा, काबिल मुबारकबाद है कारी शरीफ साहब का। और जो जुल्म हो रहा है गज़वा के मुसलमानों के ऊपर वो बंद होना चाहिए। जो वहाँ पर शहीद हो रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह गज़वा के मुसलमानों की अल्लाह अपनी गैबी मदद फ़रमाए और वो वहाँ पर जो है उनको अल्लाह ताला जो है इंसाफ दिलाए। वहाँ के जो ममालिक हैं, अपने मुस्लिम ममालिक हैं, अल्लाह ताला उनको होशमंदी आए कि वो ताकि वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं। मैं अपने मेवा की तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ तमाम अहलियान राबोडी को कि इस वक्त जो है हम सब मुत्तहिद होकर मिलजुल के काम करें कौम व मिल्लत के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये थे हमारे साथ राबोडी के सारी जमातों से मिलजुल कर सारी जमात आज एक साथ आई है फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़, आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बेशक तेरी तरफ से शहादत एक बहुत बड़ा इनाम है और उन पर रहमतें की बारिश उनके लिए बशारतें हैं, लेकिन एक पाक परवरदिगार इस तरह से जालिमों को हंसने का मौका मिल रहा है। ए पाक परवरदिगार वो चीखें हमसे सुनी नहीं जाती, वो तस्वीर देखी नहीं जाती। पाक परवरदिगार तू बड़ा करीम है, तू तो तेरे नबी के हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है अल्लाह ताला हज़ार माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। और ये भी बंदे भी कौन से मोमिन बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं। पाक परवरदिगार तेरी रहमत तो अपनी रहमत को हरकत में ला, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। पाक परवरदिगार तू ही है कि जिसने
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से बचाया। ए पाक परवरदिगार तू इस जालिम इज़राइल के जुल्म से फ़लस्तीनी गाज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए पाक परवरदिगार तू ही है कि जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, उनकी कौम के लिए समंदर में रास्ते दिए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की फ़तह और उनकी पर जो है मुसीबतों के ख़त्म होने के रास्ते पैदा फरमा दे। ए पाक परवरदिगार तू ही है जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहिफाजत जो है कुएं से निकाला। एक पाक परवरदिगार इस वक्त गाज़ा एक कुआं बन चुका है। इन जालिमों ने इतना जुल्म किया, अल्लाह ताला गाज़ा के मुसलमानों को उस कुएं से निकाल दे। अल्लाह गाज़ा के मुसलमानों पर अपना रहम करम फरमा दे। ए पाक परवरदिगार बेशक तेरी हर चीज़ में हिकमत है, हम जाहिल, हम तेरी हिकमतों को नहीं जान सकते, लेकिन ए पाक परवरदिगार दुनिया जो है बज़ाहिर मुसलमानों के ईमान पर उस पर शक करती है। मेरे मौला ए पाक परवरदिगार तू मुसलमानों को जो है ईमान, यकीन और मुस्तहकम की दौलत अता फरमा दे। ए पाक परवरदिगार इस जंग को बंद फरमा दे। ए मौला जालिम इज़राइल को जो है नेस्त नाबूद फरमा दे। ए मौला जालिम इज़राइल पर जो है आसमान से अल्लाह अबाबील का कोई लश्कर भेज कर इसको हमेशा के लिए तहे तेज फरमा दे। ए पाक परवरदिगार फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करम फरमा दे। ए मौला पाक परवरदिगार तू बड़ा करीब है, बड़ा रहीब है, हर तरफ से दुआ हो रही है। मेरे मौला ये जालिम ताकतवर है और जुल्म कर रहा है। मौला तू खास करम फरमा कर इन तमाम मुस्लिम बादशाहों को जो चूड़ियाँ पहन कर बैठे हैं, अल्लाह इन्हें चूड़ियाँ उतार कर मुत्तहिद होकर के फ़लस्तीन की हिफाजत की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह मुस्लिम बादशाहों को एक और नेक बना दे। ए अल्लाह मुस्लिम बादशाहों को एक और नेक बना दे। ए पाक परवरदिगार तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत फरमाई है। मौला तो फ़लस्तीन गाज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी गुनाह आलूद ज़बानों को न दे के अल्लाह हम कितने ही गुनाहगार है, लेकिन एक दो निस्बतें हमारे पास है। एक तो ये कि तू हमारा खुदाए वहदहू ला शरीक है, ये निस्बत है। हमने तेरे अलावा इस ज़मीन पर किसी को खुदा नहीं माना है। ए अल्लाह उसी मुनासबत को, उसी निस्बत को तेरी बारगाह में रख रहे हैं। अल्लाह तुम मुसलमानों की, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे। और दूसरा ये कि हमने तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल माना है, रहबर माना है। मेरे मौला पाक परवरदिगार इसी निस्बत का वास्ता तेरी बारगाह में देते हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर रहम करम फरमा दे। ए पाक परवरदिगार फ़लस्तीनी मुसलमानों पर रहम करम फरमा दे। ए अल्लाह उनका क्या हो रहा होगा जिनके पूरे के पूरे ख़ानदान ने दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमा दे। ए अल्लाह जो ज़ख्मी है अल्लाह उन्हें इलाज और मुआवजे के लिए अल्लाह दवा और असबाब पैदा फरमा दे। ए अल्लाह जो बेघर हुए हैं अल्लाह उन्हें घर अता फरमा दे। ए पाक परवरदिगार तू बड़ा करीम है, तू तेरी शान तो है कुन फयकून, तू कहता हो जा तो हो जाती है। ए अल्लाह इस लफ्ज़ कुन फयकून का सदका अता फरमा दे। अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, इज़राइल को नेस्त नाबूद फरमा, इज़राइल को नेस्त नाबूद फरमा। अल्लाह तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। हमारे देश भारत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे देश में हमने सुकून अता फरमा। और जो है गोदी मीडिया जिस तरह से जो है उछाल रही है अल्लाह, इन जितने भी पागल हैं इन पागलों को हटाकर अच्छे लोगों को गोदी मीडिया में पहुंचा दे, ताकि वो सही तरह से लोगों के जुल्म को समझ सके और मजलूम के दर्द को समझ सके। ये अल्लाह हमें मजलूमों का साथ देने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दिन और रात दुआ करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ईमान पे चला, ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। जितने भी हजरात यहाँ आए हैं इन सब की हाज़िरी को कबूल फरमा कर ईमान पे हम सब का खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िर का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फरमाए, फ़लस्तीन की जंग को बंद फरमाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की, गाज़ा के मुसलमानों की मदद फरमाए। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा।
ایسے ہی تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گونڈوی نیوز. آپ کی جانکاری ہماری ذمہ داری. جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کریے. یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے. جے ہند جے مہاراشٹر.